देखिए बच्चों, हम वर्क को पढ़ रहे हैं। वर्क क्या होता है? इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिफाइंड व्हाट इज वर्क, व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्क, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मूले ऑफ वर्क, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इसी में देखिए हमने वर्क का एक फॉर्मूला डिफाइन किया था। वर्क W इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वी हैव रेड दिस फॉर्मूला। W is equal to F dot S. Now if you want to write the components of S, now force can be written as in terms of three components, Fyj plus Fzk, where Fx is the component along x-axis, Fy is the component along y, and Fz along z-axis. Similarly, you can write S in terms of three components, xi plus yj plus zk, इक्वेशन नंबर 3. S is the distance travel, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल कहते हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसको भी हम x के तीन कंपोनेंट ले सकते हैं, x, y एंड z. थ्री कंपोनेंट्स आर देयर, वी कैन रिप्रेजेंट इट. सो हाउ विल यू राइट दिस W नाउ? W is equal to F dot S, there is a dot product Fx I cap plus Fz k cap, and along with dot product xi plus yj plus zk plus zk. So this is a way to define work. इस तरीके से हम वर्क को डिफाइन कर सकते हैं. And as we all know, it is fx into x plus fy into y plus fz into z. ax bx plus ay by plus az bz. Earlier we have read, and since this is the magnitude, so either you can write like this also, fy plus z fz. It does not mean x into x, x square, y into y, y square. This x is in suffix of f. This y is in suffix of f. This z is also in suffix of f, which says that it is the component of force along x-axis, component of force along y-axis, and the component of force along z-axis. So this is another way to find work done. इस तरीके से भी आप वर्क को फाइंड कर सकते हैं. किसी भी न्यूमेरिकल में आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, then you will find work done. किसी को भी वर्क डन आप निकाल सकते हैं. अच्छा देखिए, चलिए अभी हम इसको एक क्वेश्चन बनाते हैं इसी के ऊपर. लेट्स हैव ए क्वेश्चन. Suppose F is given that 2I plus 3J plus K Newton. This is given us. A force is given. And this force is applied on a body which displaces it through a displacement I plus 2J plus 2K vector. This is in meter. A force F given by this is applied on a body which produces displacement as vector given by this in meters. So what about work done? How much work will be done? Apply this formula directly. W is equal to, what is x? 1. What is fx? 2. So 1 into 2 plus, what is y? 2. What is fy? 3. That is 2 into 3 plus, what is this z component? Z. And this is fz. This is 2 and this is 1. So plus 2 into 1, that is equal to 2 plus 6 plus 2, that is 10 joule. 10 joule is the answer. ठीक है, 10 जूल इसमें आंसर आ जाएगा. सो दिस इज ए वे टू फाइंड वर्क डन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर गिवन इनटू देयर कंपोनेंट्स. यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली. सो यू हैव सेवन फॉर्मूले फॉर वर्क. वी स्टार्टेड फ्रॉम f into s, then we next formula is fs cos theta, then I have written f dot s in vector form, then I have written w is equal to integral f dot dx or ds from x1 to x2. These are the formulae of work done. And last one from graph, it is the area below the graph line. And final formula is there in terms of component, that is x fx plus y fy plus z fz. So these all are the formulae of work done. इनसे हम work done calculate करते हैं बच्चों. चलिए अब हम next इसमें लेते हैं बच्चों. I hope it is clear to everybody. Now we come to next. There are two terms, conservative and non-conservative forces. What are conservative force and what are non-conservative force? Let's try to understand it. ठीक है, अच्छा टॉपिक इसमें ले रहे हैं. और ये नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. सबसे पहले हम कंजर्वेटिव लेते हैं. व्हाट आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस? Conservative forces are those forces for or against which
the work done in displacing a body between initial and final position does not depend on the path followed between them. क्या बताया हमने? Conservative forces are those forces by or against which the work done in displacing a body between initial and final position does not depend on path. So the work done either against or by the conservative force to displace a body between initial and final positions or between any two position is path independent. अगर हम अगेंस्ट इस कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा अगर हम उसके अगेंस्ट या उसके फेवर में वर्क कराते हैं और वो वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता बट इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस then the force is said to be conservative. So a force is said to be conservative if work done by or against it in moving or displacing a body between two positions does not depend on path followed between them. And depends only on initial and final positions of the body. ये definition. This is the definition of conservative force. If this condition is satisfied, then force is said to be conservative force. So example, very good example of the conservative force is gravitational force, electrostatic force, स्टैटिक फोर्स. ये सब एग्जांपल है. किसका एग्जांपल? ये तो आप क्लास 12 में पढ़ते हैं, क्लास 11 में पढ़ते हैं. फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडी द ग्रेविटेशनल फोर्स. फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो कंजर्वेटिव एंड electrostatic force is also conservative force. Why? Because work done either against or by the gravitational force in displacing a body between any 2 points does not depend on path. It is path independent. The work done by the force is path independent. The work done against the force is path independent. However, it depends on initial and final positions of the body. So what is the characteristics of conservative force? The characteristics of conservative force is the work done by or against it should be path independent. Number one. Number two, it should depend on initial and final positions. इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करना चाहिए, पाथ पर डिपेंड नहीं करना चाहिए. दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस. देन व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? The force which is not conservative, that is non-conservative, means the force is said to be non-conservative if work done by or against it in moving a body between two positions depends, not क्या करेगा? Depends on path followed between them. तो ये पाथ पर भी डिपेंड करता है. अगर पाथ पर डिपेंड करता है तो कैसा बन जाएगा बच्चों? देन इट विल बी नॉन कंजर्वेटिव. तो अगर हम इस एरो को यहाँ से शिफ्ट कर दें तो देखिए ये डेफिनेशन हम चेंज करने जा रहे हैं. बाई यहाँ डज नॉट हट जाएगा, डिपेंड्स आ जाएगा. ठीक है, डिपेंड्स आ जाएगा. एंड यहाँ क्या लगेगा? बिटवीन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल, डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड बिटवीन देम. उनके बीच में जो पाथ फॉलोड है उन पर डिपेंड करेगा, बिटवीन देम. और जितने भी फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं वो सब इसके एग्जांपल हैं. फ्रिक्शनल फोर्सेज, अब दो तरह के फ्रिक्शनल फोर्स पढ़े हैं आपने. फ्रिक्शनल फोर्स कौन से वाला? सॉलिड फ्रिक्शन. कौन से वाला? लिक्विड फ्रिक्शन, जिसको विस्कस फोर्स कहते हैं. तो आपका चाहे एयर फ्रिक्शन है, चाहे आपका लिक्विड फ्रिक्शन है, विस्कोसिटी है, या आपका सॉलिड फ्रिक्शन है, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस by or against which the work done is path dependent, and conservative forces by the forces the work done by or against these forces is path independent.
तो केवल पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, उन्हीं के टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। चलिए एक एग्जांपल को हम प्रूव करके बताते हैं बच्चों। कंजर्वेटिव फोर्स में एक आपका सिलेबस में एक एग्जांपल है, प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, प्रूव दैट और शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। हमें प्रूव करना है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। चलिए बच्चों उसको प्रूव करते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्स आपने कौन सा बताया, जो कैसा होना चाहिए, पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है, जो ग्रेविटी की वजह, एक स्पेशल केस है बिटवीन द टू बॉडीज, फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटी इन द स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम क्या मान के चलते हैं बच्चों, लेट अस कंसीडर a body of mass m is moved from ground to height h via different paths. Via means through, via different paths as given below, ठीक है। अलग अलग केस में मान लीजिए सबको, पाथ फर्स्ट। और क्या है ये पाथ फर्स्ट बच्चों, ये है आप सीधा यहां से और यहां तक ले गए, ए से लेके बी तक, कितने हाइट तक रेंज किया, एच हाइट तक रेंज किया। दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस वन इज फाइनल पोजीशन, ठीक है। कितना मास है, एम मास है, और अगर एम मास है बॉडी का, ये मास एम है, तो कितना फोर्स लगता है वर्टिकली, डाउनवर्ड। फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड्स लगेगा। तो व्हेन इट इज रेज्ड अप देन वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या माना आपने पाथ फर्स्ट पे, लेट द बॉडी इज रेज्ड थ्रू हाइट h फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्टली ए टू बी। आपने ऐसा उठाया नीचे से, कोई भी मास रखा था, वो ऑब्जेक्ट रखा था, मार्कर यहाँ रखा था ग्राउंड पे, यहाँ से आपने h हाइट तक रीच कर दिया। अब इसमें हम वर्क निकालना चाहते हैं, व्हाट अबाउट द वर्क। तो देखिए जब आप इसमें वर्क निकालेंगे, नाउ वर्क ऑन द बॉडी और वर्क डन, कौन सा वर्क डन है, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर पूरा लिखोगे तो हम वर्क डन ऑन द बॉडी भी लिख रहे हैं, वर्क डन एक में लिख देते हैं अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ये समझ आया, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट क्यों वर्क डन होगा, वो इसलिए होगा कि आप ग्रेविटेशन के फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी को मूव कराते हैं। सो इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, से इट इज W1 इज इक्वल टू, कितना आएगा बच्चों, व्हाट इज मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज इट अप, दैट इज इक्वल टू force into height, and this force is mg into h. So minimum force required to raise the body up, that is equal to the weight of the body mg. So work done will be mgh. This is case first, in which the body is raised directly, जिसमें बॉडी को आपने डायरेक्ट रेज किया है, ये केस फर्स्ट हो गया। Now we come to case second one, path सेकेंड पाथ में क्या लें आप, इसी हाइट तक, सेम हाइट तक बॉडी को आप लेके जा रहे हैं, और इस बॉडी को जब आप सेम हाइट तक लेके जाएंगे तो यहां लिख लेते हैं, चलिए बच्चों पाथ सेकेंड। और पाथ सेकेंड में द सेम बॉडी इज रेज थ्रू द इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन बी, दिस इज सी, ऑब्वियसली हाइट इज एच, एंड बॉडी इज रेज थ्रू दिस इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस वन इज फाइनल पोजीशन। ऑब्वियसली बताइए हाइट कितनी है, दोनों केस में h है कि नहीं, हाउ मच वर्क इज डन फ्रॉम A to B. So this time we are just raising the body not directly upwards, but we are moving the body through this inclined plane. अब इस inclined plane से आप ऐसे लेके जाना चाहते हैं बॉडी को, पहले आप h हाइट तक उतना ही रेंज किया था आपने, इस केस में कितना वर्क डन होगा, चलिए फाइंड करते हैं। बताइए क्या क्या चीज हमने पढ़ी है, इस पे वेट कितना है mg, एंगल कितना है थीटा, ये कंपोनेंट कौन सा है mg cos थीटा, ये कंपोनेंट कौन सा होता है mg sin थीटा, ये कंपोनेंट कौन सा है r है। अब आपको बॉडी को किधर लेके जाना है, इस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो बताइए वर्क डन कितना आएगा, लेट द बॉडी
is moved along inclined plane from A to B थ्रू द सेम हाइट, जितनी हाइट ये उतनी हाइट ये रखी आपने, ठीक है। इनिशियल पोजीशन क्या है, ग्राउंड, फाइनल पोजीशन क्या है, एट हाइट h, यहां तक रेंज करना है आपको। तो बताइए वर्क डन कितना होगा, वर्क डन, एंड अगेन दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेन यू आर मूविंग द बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी, वर्क डन विल बी फोर्स और इनटू क्या आएगा बच्चों, डिस्टेंस, कौन सा वाला डिस्टेंस आएगा, ए बी आएगा, ए से बी तक लेके जाना है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड ऑन दिस बॉडी, बताइए। अगर ये थीटा है और ये कंपोनेंट कौन सा हो गया है, एम जी साइन थीटा, तो जब ऊपर लेके जाएंगे इंक्लाइन प्लेन पर तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अप विल बी एम जी साइन थीटा। एंड रिमेंबर दिस थिंग चिल्ड्रन, वी हैव इग्नोर्ड फ्रिक्शनल फोर्स ओवर हियर, without friction we are considering, so what is mg sin theta force is equal to mg sin theta multiplied by ab, लिख सकते हैं कि नहीं, ab, a से b तक का डिस्टेंस हो गया। व्हाट इज sin थीटा, इस वाले ट्रायंगल में sin थीटा लेना बच्चों, कितना होगा, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन इट विल बी mg bc अपॉन ab मल्टीप्लाइड बाय ab, ये कैंसिल हो गया एंड दैट इज इक्वल टू mgh, दिस इज w2, equation number second. So again in this case we have got how much work is done, mgh. So when we move a body from ground to height h through inclined plane, work done on the body is w is equal to mgh. When you are raising the body directly from ground to height h, then work done will be w is equal to mgh. Okay, there are two cases. चलिए एक केस और ले लेते हैं. Let's have one more case, third case. पाथ थर्ड पाथ, ये सेकंड पाथ था, कौन से वाला पाथ ले रहे हैं, थर्ड ले रहे हैं। अच्छा, स्टेयर केस के थ्रू जा रहे हैं। अब स्टेयर्स बनाइए ऐसे, अब यहां से आप चलिए, आपने इस तरह से लिया और फिर आपने ये लिया पाथ, फिर इस तरीके से लिया और ये आपने, और यहां तक आप एच साइड से पहुंच गए, ए बी, या इसको ये कह दीजिए, ये आपका बी हो गया, ये पॉइंट कौन सा है, सी है, एच है, जो भी लेना चाहें। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, अगर आप ऐसे लिख दीजिए सी डी ई एफ जी एच आई जे और के, मान लीजिए ये वाले पॉइंट्स हैं, और ये कोई भी आप पॉइंट्स मान लीजिए एम एन है, और पॉइंट्स कैसा है, सेम हाइट पर है। अगेन वी हैव टेकन द हाइट से, and suppose this height is h1, this height is h2, this is h3 and this is h4 and it is up to hn। ये हम कितना हाइट ले रहे हैं, hn हाइट तक जा रहे हैं। ओके, अब स्टेयर से अगर लेके जाएं इसी बॉडी को, हम यहां से ऊपर लेके जाना चाहते हैं स्टेयर से, देन हाउ मच वर्क इज टू बी डन। आप अपने घर में ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे किसी सामान को शिफ्ट करना चाहते हैं, द वन वे जस्ट टू लिफ्ट इट वर्टिकली अपवर्ड्स, सेकंड वे यू हैव एन इंक्लाइन प्लेन, यू जस्ट मूव अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, you carry this mass through the inclined plane, and third one is that you can carry it towards the through the staircase। तो staircase में vertical distance भी है, horizontal भी है। Suppose this distance is s1, this distance is s2, this is s3 and so on। So vertical height h1, h2, s3, s4, hn, this is s1, s2, s3 and sn, and we have to find work done। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, let the body is moved through staircase, और स्टेयर्स को थ्रू लेके जा रहे हैं। ठीक है, चलिए फाइंड वर्क डन। नाउ वर्क डन इन मूविंग द बॉडी, कहां से कहां तक, सबसे पहले कौन सा आएगा, डब्ल्यू ए बी, ए से बी तक लेंगे, फिर डब्ल्यू बी सी, डब्ल्यू सी डी, डी ई, डब्ल्यू ई एफ प्लस ई एफ के बाद में कौन सा आ रहा है बच्चों, ई एफ एफ जी प्लस डब्ल्यू एफ जी भी आ गया, फिर जी एच प्लस डब्ल्यू एच आई एंड सो छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड सो। और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू डी ई, और अप टू ये हो गया, प्लस दूसरे वाला हॉरिजॉन्टल वाले ले लो, डब्ल्यू बी सी, डब्ल्यू डी ई, अच्छा डब्ल्यू डी सी, और पहले वाला कौन सा था बच्चों, ए बी, फिर कौन सा था सी डी, सी डी के बाद में कौन सा आएगा, ई एफ आएगा, सी डी के बाद में वर्टिकल वाला ले रहे हैं, दिस इज ई एफ। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल लो,
हॉरिजॉन्टल में कौन सा आया, BC आ गए, फिर हॉरिजॉन्टल में कौन सा हो गया, DE हो गया, फिर हॉरिजॉन्टल में कौन सा हो गया, FG हो गया, प्लस WFG एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। n नंबर ऑफ स्टेयर्स आ गए, हमने फिक्स नहीं लिया, n नंबर मान लिया, जनरल n मान लिया, n में भी 10, 20, 3, 5 व्हाटसोएवर। अब देखिए इसमें कितना वर्क होगा। वर्क डन इन शिफ्टिंग ए बॉडी फ्रॉम A to B थ्रू हाइट h1, हाउ मच वर्क इज डन, कितना मास है बच्चों, m, कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट अप, mg, vertically upward, what is height, h1, so in first case it is mgh1. What about second case, what about this one, mgh2, what about next mgh3, and it is plus mghn। अगर ये हाइट कौन सी है, nth हाइट है, mghn हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। How much work is done in this case, how much work is done in this case, what is weight of the body, mg, how much distance is travel, s1, cos 90। अब देखिए cos 90 हो जाएगा, वेट किधर है वर्टिकल बॉडी का, फोर्स किधर लगा हुआ है, डाउनवर्ड्स, या रेज करने के लिए किधर अपवर्ड किया हमने, ऊपर, और डिस्टेंस कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल। तो देखिए फोर्स तो हो गया है वर्टिकल डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल। तो कुली वाला एग्जांपल होगा कि नहीं, वेट हमारे सर पे रखा हुआ है और चल रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर है, वर्टिकल डायरेक्शन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किधर है, हॉरिजॉन्टल, एंगल कितना हुआ, 90, हाउ मच वर्क विल बी डन, 0, cos 90। What about second case, plus mgs2 cos 90 and similarly mgsn cos 90, और ये सब वर्क 0 हो जाएंगे नीचे वाले, और लास्ट में mg कॉमन ले लीजिए बच्चों, h1 plus h2 plus h3 plus hn, and what is this h1 plus h2 plus h3 plus hn, that is equal to height h, it is equal to mgh. So in this case w3 is equal to mgh. So from equations first, from equation second and equation 3, from equations now we can write from equations first, second and third, w1 is equal to w2 is equal to w3, therefore the force is, so the gravitational force will be conservative, will be कैसा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव। व्हाई कंजर्वेटिव, बिकॉज इन ऑल थ्री केसेस वर्क डन टू मूव अ बॉडी फ्रॉम ग्राउंड टू हाइट h इज सेम वाया डिफरेंट पाथ्स। तो आपने अलग अलग केसेस लिए, अलग अलग पाथ्स आपने कंसीडर किए। फर्स्ट पाथ A to B directly, the work done against the gravitational force is mgh, then we have taken this body through the inclined plane. In this case work done, again we have found distance travel will be this AB, force will be mg sin theta when you will solve, and then you will get mgh, and finally when we take this body through the stairs to the height h, then how much work is done, first vertical motion, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, and so on. So what is work done, this for this vertical, for this, for this, for this, height mgh1, mgh2, mgh3. For horizontal case the work done will be 0, so no work done from B to C, no work done from D to E, no work is done from F to H, F to G, and so on, so that the total work done again you will get mgh. And since work done in moving a body through height h from ground position to position h or any other position at height h, the work done will be same. And since work done against this force is equal, so by the definition of gravitational force, what will happen, the gravitational force is a conservative force। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है बच्चों। तो यहाँ हमने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिफाइंड व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस, व्हाट आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, definitions, examples, and finally we have proved that the gravitational force is a conservative force। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी हम कंजर्वेटिव फोर्स की बता देते हैं। तो देखिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स तो पहले हमने ऑलरेडी वी हैव डिफाइंड। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इन विच द वर्क डन बिटवीन द टू पोजीशन इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। And second one, it depends on initial and final position of the body. And third case is work done, third property, work done around a closed path, closed path, कौन से वाले फोर्स में, is 0,
किसके लिए कह रहे हैं वर्क डन, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। सो वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स अराउंड ए क्लोज्ड पाथ विल बी जीरो। तो अगर क्लोज स्ट्रिप बनाते हैं, क्लोज्ड पाथ बनाते हैं, तो उसमें वर्क डन क्या आता है, जीरो आता है। अब देखिए कैसा आएगा वर्क डन, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। चलिए यहाँ से ए से बी तक ले जाओ किसी बॉडी को, और फिर बी से घुमा के ए तक ले आओ वापस, ये जाने का होगा, ये वापस आने का होगा। और जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं तो हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, फोर्स डाउनवर्ड है, तो कैसा वर्क होगा, नेगेटिव होगा। तो ये तो नेगेटिव वर्क होगा, नेगेटिव वर्क। और इधर का वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव किस में होगा, फोर्स भी डाउनवर्ड से है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड से। इसमें फोर्स डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट कैसा है, अपवर्ड है। तो पहले वर्क डन आपने कितना लिया, फ्रॉम ए टू बी डब्ल्यू ए बी, क्या लिया आपने, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू, एंड फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी सी। डब्ल्यू बी से कहां तक आ गए, सॉरी बी टू ए दैट इज डब्ल्यू बी ए। Why should I not write it minus WAB? माइनस मीन्स ए टू बी, कैसा वर्क हुआ, नेगेटिव हुआ। तो ये तो नेगेटिव हुआ और ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब देखिए एक ही बॉडी को आप एक जगह से दूसरे के ले जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक लेके गए और इधर से इधर लेके आए, तो यानी कि दोनों वर्क डन का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, सेम। पोजीशन तो वही होगी, दो इनिशियल फाइनल पोजीशन। सो डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ए बी, और इसको इधर ले आइए, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू जीरो, और डब्ल्यू ए बी ए इज इक्वल टू जीरो। ए बी ए का मतलब क्या हुआ, ए से बी और बी से ए, तो कैसा बन गया, राउंड स्ट्रिप बन गया, क्लोज पाथ बन गया। तो अगर कोई राउंड स्ट्रिप है, राउंड स्ट्रिप का मतलब जहां से शुरू हुए ए पोजीशन से बी पोजीशन से घूम के फिर ए पर आ जाओ, तो कैसा बन गया, क्लोज स्ट्रिप बन गया, क्लोज पाथ बन गया। तो अगर क्लोज पाथ के में हम वर्क डन निकालते हैं तो टोटल वर्क डन कितना आता है, जीरो आता है बच्चों से। सो दैट द टोटल वर्क डन विल बी जीरो। इन दिस केस वी हैव प्रूव्ड, दिस इज थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, द वर्क डन in case of conservative force is path independent, and second characteristics, the work done depends on initial and final position, and third, the work done through the closed path will be zero. So you can apply this property directly in any case. So this is all about conservative forces and non-conservative forces. ठीक है बच्चों, I think it is clear to everyone.